Assalamu alaikum, everyone. Good morning, good evening, good night. We just had Maghrib prayers. I am done with Maghrib prayers, so I wanted to just come online. I know it's 10, 12 minutes late, but the topic that I chose is from the poll that I did. So we will be talking about navigating family expectations while dating, or the premarital connections, like when we engage in activities where we are kind of dating, you can say. So I just need to confirm if I am visible to you. I think this is live, and I'll just post the link so you can join me in the Zoom call. So just look at the comments and join me directly if you're here. And those of you who want to post comments and ask questions or share your thoughts, please use comments or the Zoom chat once you're in the call. I hope to make this very interesting for you. कभी आपने ऐसा महसूस किया है कि आप एक रस्साकशी के बीच में हैं, like tug of war में हैं, where your heart is desiring something and your family is expecting something? Have you? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपका दिल कुछ कह रहा है और आपकी फैमिली के एक्सपेक्टेशंस कुछ और है? ऐसा अक्सर होता है, स्पेशली देसी हाउसहोल्ड्स में। देसी सिंगल्स आमतौर से इसी कश्मकश में होते हैं कि जी हमें क्या चाहिए और हमारे पेरेंट्स हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ज्यादातर ये जब करियर चॉइसेस हो रही होती हैं तो उस वक्त देखा जाता है, बट मैं इसको स्पेसिफिकली अराउंड रिलेशनशिप्स आपके सामने लाना चाहती हूँ, especially with the emphasis that it's possible to balance both. It requires some intentional effort, but you can achieve both. You can satisfy the family as well as you can, choose certain things that you can live with and design a happy life with. तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव होगा वो ये होगा कि मैं आज आपको थोड़ी सी असर्टिव लेकिन पॉजिटिव कम्युनिकेशन के साथ, विदाउट एनी डिसरिस्पेक्ट, ये भी सिखा सकूं और बता सकूं कि हमारी वैल्यूज की जब हम बात करते हैं तो वैल्यूज को सामने रखते हुए यू कैन नेविगेट एवरी कॉन्वर्सेशन, especially with the elder people in the house. So I would want, अगर आपके कोई experiences हैं या questions हैं regarding this, तो वो मुझसे ज़रूर comments में share करें या chat में आ जाएं, वहाँ share करें, and I'll try to answer them. सबसे पहला point इस training का वो ये होगा कि family की expectations को समझने की ज़रूरत है. You need to understand what the family expects from you. Now, generally, the firstborns are usually more pressurized, and if they are mature enough and wise enough, the parents expect them to lead by example. Because of that, the firstborns usually feel a lot of pressure and usually also face a lot of backlash when something out of the ordinary is happening. Now, हमारे क्योंकि हम देसी कल्चर की बात कर रहे हैं, तो मैं इस मौजू पे, इस नुक्ते पे आना चाहती हूँ कि फैमिली की एक्सपेक्टेशन हमारी बेस्ड होती है या रूट करती है लव पे या सिक्योरिटी पे, जिसको आप प्रोटेक्शन भी कह सकते हैं। अगर घर के मर्दों की तरफ से आ रही है तो वो हमेशा आपकी सेफ्टी और प्रोटेक्शन को ऊपर रखेंगे। अगर वालदा की तरफ से या घर की ख्वातीन की तरफ से आ रही है तो वो आपकी अफेक्शन और लव उसकी बेसिस होगी, ताकि आप they want you to have a stable, settled married life. ऐसे ही है ना? Stable, settled married life. That's what they want for you. And they have a lot of tambihat and a lot of insights to share even when you don't want to listen to them, because वो उनके वक्त पे उन्होंने acquire की होती है. So
आई यूज टू डू दैट टू, मैं भी करती थी कि जी कुछ चीज़ें जो मैंने शादी के शुरू में सीखी वो मैं अब दूसरों को बता सकती हूँ कि नहीं ऐसे नहीं करो, वैसे करो, दिस वर्क्स, दैट वर्क्स, बट इन एक्चुअलिटी what works? So there's certain things. Research says that when you want to navigate family expectations, you must know where the expectations are rooting from. कहाँ से आ रही हैं वो expectations? जो common expectations देसी culture में होती हैं, ये हमारी ये होती हैं कि जी हमारी religious और cultural compatibility हो, अपने जैसों में जाए लड़की या अपने जैसों के यहाँ से आए लड़की, ठीक है। फिर जो शादी की तकरीबात हैं उसकी एक टाइमलाइन हो, सब मौजूद, ज़्यादातर रिश्तेदार मौजूद हो सके। फैमिली इस पे भी प्रेशर करती है कि हमारे पास फिर समर्स और विंटर्स दो जो बच्चों के स्कूल ब्रेक्स होते हैं वो रह जाते हैं। सो एक प्रेशर ये होता है कि जी टाइमलाइन भी फैमिली की मर्जी से सेट हो। फिर ये कि जितने मुंह उतनी बात, हर कोई अपनी तरफ से एक आइडियल पार्टनर की क्वालिटीज जरूर बताता है। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, बट अच्छी बातें हर किसी में लोगों को पसंद आती हैं और लोग हाईलाइट करते हैं वो अच्छी बातें ना। तो व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स जो आपको दूसरों में अच्छी लगती हैं, क्यों आप उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं? ये खाली एक जाहिरी खूबसूरती की बात नहीं मैं कर रही, मैं किसी सतही सुपरफिशियल बात की बात नहीं मैं कर रही, बट मैं उन चीज़ों की बात कर रही हूँ जो आपको अब काम आएंगी, स्पेशली इफ यू आर लुकिंग एट फाइंडिंग योर सेल्फ अ लॉन्ग टर्म कंपेनियन, रिगार्डलेस कि आप अभी कुंवारे हैं, आप शादीशुदा हैं और डिवोर्स्ड हैं और आपको चाहिए कोई और पार्टनर, या आप विडोड हैं और अब आपको लॉन्ग टर्म पार्टनर की जरूरत है। सो सबसे पहली चीज जिस पे मैं बहुत ज्यादा हर दफा बोलती हूँ वो है आपकी अपनी सेल्फ अवेयरनेस। इसकी इम्पोर्टेंस पे मैं जितना बोलूँ उतना कम है। क्लैरिटी होना इस बात पे कि आपकी अपनी वैल्यूज क्या हैं, ये बहुत जरूरी है, बिकॉज यही वो वैल्यूज हैं जो आपके रिलेशनशिप को एक अच्छी फाउंडेशन देंगी, ठीक है। सो आप अपने फैमिली मेंबर्स से, जो कि आपकी फैमिली में रिश्तेदारों में अच्छे रोल मॉडल्स हों, जो अपनी शादीशुदा जिंदगी अच्छी तरह गुजार रहे हों, उन लोगों में नोटिस करें, ऑब्जर्व करें कि क्या क्वालिटीज हैं। क्या वो लोग सेंस ऑफ ह्यूमर यूज करना जानते हैं? क्या वो लोग एक दूसरे के पीठ पीछे आपस में किस तरह से अपने स्पाउस के बारे में बात करते हैं? क्या वो लोग ऑथेंटिक हैं या बनावटी हैं, सिर्फ सोशल मीडिया के लिए पिक्चर्स खींच खींच के लगा रहे हैं, या एक्चुअली दे आर वॉकिंग द टॉक? सो ये अगर आप अपने फैमिली रिलेटिव्स में रोल मॉडल्स में ढूंढना शुरू करें तो आपको थोड़ा सा ये शऊर आना शुरू होगा कि ओके, this is what works, and in a happy married life this helps in thriving. जो आपके गाइडिंग क्वेश्चंस हो सकते हैं, इफ यू वांट यू कैन राइट देम डाउन, जो आपके गाइडिंग क्वेश्चंस हो सकते हैं वो है one would be के what are the top 3 qualities you as a person will look for in another person जिससे आपको राब्ता बनाना, जो कि आपके ट्रू सेल्फ के साथ अलाइन होता हो। फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए ट्रांसपेरेंसी, लॉयल्टी और इंटेग्रिटी बहुत मैटर करते हैं, ठीक है। तो सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ वर्थ, ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी यानी क्लैरिटी इन वट एवर वी आर डूइंग। अगर वो इंटेंशनल होगा तो क्लैरिटी होगी। सो ये चंद वो चीज़ें जो मैं लोगों में देखती हूँ और फिर मैं लोगों को चूज करती हूँ अपने आप से इंटरेक्ट करने के लिए। आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो जैसे मैं एक एक्सट्रोवर्टेड पर्सन हूँ तो मैं क्योंकि बहुत सारे लोगों से राब्ते में होती हूँ तो ज़रूरी नहीं कि हर कोई मुझसे करीब हो। हाँ मैं सबसे राब्ते रखती हूँ, बट ज़रूरी नहीं कि हर कोई मेरे साथ मुंसलिक भी हो, या करीब हो मेरे, या वो उस सर्कल में हो जो मुझे इम्पैक्ट करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग डियर। Sharmeen is joining. Let me also turn my Fathom on. I'm so glad. Whoever can join us, you're most welcome. Okay, most welcome. So
मैं ये कह रही थी कि सबसे पहले, आर यू रेडी टू allow somebody inside your personal space, inside your head, inside, okay? और हमें ये भी देखना होगा कि क्या वो टॉप क्वालिटीज हैं, टॉप 3 क्वालिटीज जो कि मैं वैल्यू करती हूँ किसी दूसरे में। सो आप वो कौन सी 3 वैल्यूज हैं जो आप वैल्यू करते हैं दूसरों में, स्पेशली जब आपका इंटेंशन हो कि इनके साथ आपको ज्यादा कांटेक्ट में रहना है या इनसे डीपर इमोशनल कनेक्शन बनाना है। सो उसमें सिर्फ फैमिली एक्सपेक्टेशन नहीं आएगी, बट आपकी अपनी वैल्यूज आपको क्लियर होनी चाहिए। एक एक्शनेबल स्टेप मैं आपको ये दे सकती हूँ कि अपने मस्ट हैव, यानी कि ये मेरे लिए बहुत जरूरी है, ये लिखा हुआ होना चाहिए आपके पास कि दिस मस्ट हैपन, दिस नीड्स टू हैपन, दिस मस्ट बी प्रेजेंट विद, एंड इट कैन नॉट बी अ वेरी लॉन्ग लिस्ट, क्योंकि हर किसी के चेक बॉक्सेस टिक नहीं होते, राइट? सो व्हाट आर द मस्ट हैव्स? क्या वो चीज है जो कि लाजमी है या नॉन निगोशिएबल है? यानी कि फॉर एग्जाम्पल सम पीपल से कि मुझे स्मोकर्स पसंद नहीं है, वो बहुत अच्छे हैं बट वो स्मोक करते हैं। स्मोकिंग इज नॉट अ नॉन निगोशिएबल, राइट? बट जो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स हैं, अगर उनको पता चले कि जी बहुत सब कुछ अच्छा है बट मेरे जो टू बी हैं वो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं या ड्रिंक करते हैं ओकेजनली, नाउ दिस डज नॉट सिट विद योर वैल्यूज। सो फॉर दैट पर्सन जो कि एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है और उसको शादी से पहले ही इस चीज पे ऑब्जेक्शन है, तो यू नीड टू स्पीक अबाउट इट एंड यू नीड टू बी वेरी श्योर कि कोई आपकी वजह से कभी भी कोई एक्टिविटी नहीं छोड़ेगा। इस उम्मीद में मत रहिए कि जी इफ ही ड्रिंक्स नाउ ही विल चेंज लेटर। डू नॉट फॉल फॉर दिस। Talk to the person directly. Tell them that I, as a practicing Muslim, I value this, and I would appreciate that my spouse also valued it. If you're not at that point, maybe we should not be considering each other. Because आप किसी के ऊपर अपनी वैल्यूज इम्पोज नहीं कर सकते, आप किसी के ऊपर अपनी वैल्यूज थोप नहीं सकते। सो बी वेरी क्लियर ऑन what is a non-negotiable for you and what is a must have for you। और बाकी तमाम चीजें जो है वो वक्त के साथ एडजस्ट हो जाती होती हैं, ठीक है? नाउ फैमिली बाज़ औक़ात आपको ये बताएगी उसमें तो ऐसा अच्छा है, उसमें तो ये बुरा है, उनके घर वालों में ये खामियां हैं, वो लोग तो ऐसे हैं, वो लोग तो वैसे हैं। अपनी ऑब्जर्वेशन फर्स्ट हैंड रखें। ऑनेस्टी और रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है, बट जब आप अपनी फैमिली को बता रहे हो कि जी मुझे एक शख्स में मैं ये तलाश करता या ये चीजें मुझे चाहिए, तो वो ये नहीं होंगी कि जी रंग कैसा हो और कद कैसा हो। वो ये होंगी कि एज अ पर्सन क्या स्किल सेट उनका होना चाहिए, क्या वो सुनने की ताब रखते हैं, इज दिस पर्सन एन एक्टिव लिसनर, is this person a complainer, is this, what is their outlook on life? I cannot be with a person who is not proactive and not progressive, that much I know। अगर कोई एक जगह स्टक और सल्क कर रहा है, उसको मैं, अगर मेरी हेल्प नहीं चाहिए तो मैं बिला वजह हेल्प भी ऑफर नहीं करूंगी, ठीक है? बट फैमिली को कैसे कन्वे करेंगे आपके जी मुझे किस कोई अच्छा लग रहा है और उनमें ये क्वालिटीज हैं, बेशक आपको लग रहा है कि वो एक अच्छा मैच नहीं है बट वैल्यूज हमारी मैच कर रही है। तो ये बताने का एक बेहतर तरीका एक डायलॉग की सूरत में हो सकता है, वेयर यू कैन से टू योर फैमिली मेंबर्स कि आई अंडरस्टैंड आप क्या चीज हाईलाइट कर रहे हैं, and I value your point also. I appreciate that you're bringing this to my awareness and my knowledge, but at the same time, this person's values they align with me। मुझे ये चीजें जो कि नॉन नेगोशिएबल्स हैं, जो कि इस पर्सन में मुझे नहीं दिखती और मेरे लिए ये कंपैटिबल है, आज कंपैटिबल है और हम साथ साथ ग्रो कर सकते हैं, या एक दूसरे को समझने के लिए वी आर ओपन नाउ, राइट? सो इट्स इम्पॉर्टेंट दैट यू लिसन टू व्हाट द फैमिली इज सेइंग, और वो उनकी उनके जो जुमले हैं उनके नीचे जो उनकी नीड है और आपके लिए जो डिजायर है वो जरूर समझें। उनका कोई ना कोई कंसर्न होगा जब वो किसी पे जजमेंट पास करते हैं।
सो वो जजमेंट किसी पे अगर पास करें तो क्या कंसर्न हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के लिए पैसा बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं वो कहते हैं कि जी हम बहुत हाई मेंटेनेंस है, हमारे लिए तो जिससे भी हम रिश्ते में बंधे, उनको ये मालूम होना चाहिए कि हम हाई मेंटेनेंस हैं और हमें ये प्रोविजंस चाहिए होंगे, या तो पॉकेट मनी मिलेगी या हम खुद कमाएंगे, ठीक है। सो सो ऐसे ऐसे लोग, अब ये कोई गलत या सही की बात नहीं है, ये एक नीड है, दिस नीड नीड्स टू बी फुलफिल्ड, वरना क्या होगा कि कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, फाइनेंशियल स्ट्रेन्स होंगे, ठीक है, और इसमें फिर गैर जरूरी फैमिली का इन्वॉल्वमेंट भी होगा और बात का बतंगड़ बना करेगा। सो इट्स इम्पोर्टेंट कि ये बात होने से पहले ही, अभी शादी नहीं हुई है उससे पहले ही ये जरूर डिस्कस हो जाए कि आपके लिए क्या चीज वैल्यूबल है और आपकी फैमिली उसको किस एंगल से देख रही है। आपकी फैमिली को आपकी आदत का पता होता है, आपकी फैमिली को अंदाजा होता है कि आप मोल्ड हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। अंदाजा इज नॉट नेसेसरली assumption based, but it could be because of the habits that you have। आपकी आदतें देख के आपकी फैमिली मेंबर्स आपको गाइड करना चाहेंगे या काउंसिल करना चाहेंगे। वो क्यों करना चाहेंगे? वो अगर किसी दूसरे पे जजमेंट करें तो वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनका एक कंसर्न है, आपको खुश देखना चाहते हैं वो। आप अगर उनको ये कन्विंस कर सकते हैं कि बिकॉज देर इज कंपैटिबिलिटी, हमारी वैल्यूज सेम है, हम कंपैटिबल हैं और हम साथ खुश रहने की कोशिश कर सकते हैं, तो ये एक मस्बत बात होगी और ये बात उनको समझ आएगी, कम से कम थोड़ी तसल्ली उनकी हो जाएगी। प्लस you must, if you're an adult, you must start making healthy boundaries starting from home. Mental health starts from home. Mental health starts with you prioritizing your well-being. So ये बताना भी जरूरी है कि इन सर्टन सिनेरियोज अपने घर वालों को ये बताना भी जरूरी है कि मैं कुछ डिसीजंस अब खुद से लेना चाहूंगा या खुद से लेना चाहूंगी, जिसमें मैं आपकी गाइडेंस हमेशा मांगूंगा या मांगूंगी। गाइडेंस हमेशा मुझे चाहिए होगी अपने एल्डर्स की, बट उस गाइडेंस के बाद जो फैसला होगा वो मेरा होगा, ताकि मैं एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लूं, ठीक है। सो ये सब करने के बाद what will be required from your end? It's important to understand that you can say no to potential matches that don't align with your values। आप मना कर सकते हैं, आप कह सकते हैं कि मैं ये शादी जबरदस्ती नहीं करूंगा, इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि मेरी यहाँ पे वैल्यूज अलाइन नहीं हो रही, बट उसके लिए आपको अपनी वैल्यूज पता होनी चाहिए, ठीक है। सो थोड़ा सा बैकवर्ड है इसमें। फिर even if it gets tough, stick to your values, even if it gets tough। What does it mean when it gets tough? आपको चैलेंजिंग लगेगा, आपको अनकंफर्टेबल लगेगा, बट अगर आपकी वैल्यूज मैच करती हैं आप थ्राइव कर जाएंगे। I'll give you an example। मेरे लिए एक जॉइंट सिस्टम में रहना बहुत डिफिकल्ट चीज था, बिकॉज मेरी वालदा खुद जॉइंट सिस्टम में नहीं रही, बट मैंने हमेशा उनको अपनी सास की, ससुर की और घर के बड़ों की इज्जत करते देखा है, तो हमें रोल मॉडल्स अच्छे मिले। Having said that, it still took me time to understand कि यहाँ वैल्यूज क्या हैं, इस जॉइंट सिस्टम में वैल्यूज क्या हैं, मेरे हस्बैंड की वैल्यूज क्या हैं और मेरी वैल्यूज क्या हैं। गुड थिंग इज कि मेरी और मेरे हस्बैंड की वैल्यूज अलाइंड है। हमारी टॉप वैल्यू फैमिली है, और फैमिली में एक छोटा सा जो पॉइंट मैं बता दूं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो ये अंडरस्टैंड करना होता है कि एक लड़के को ये मालूम होना चाहिए कि देसी कल्चर में माँ बाप की इज्जत जरूर है, लेकिन माँ बाप न्यूक्लियर फैमिली है उसकी, और जो फैमिली वो बाय चॉइस बना रहा है, द वाइफ विल कम फर्स्ट। द वाइफ कम्स फर्स्ट इवन इन द रिलीजन, इस्लामी रिलीजन। सो बीवी की तरफ जो हकूक है वो अदा होना जरूरी है, उसमें आप बीवी और माँ का मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि इन दोनों का मुकाबला बनता नहीं है। ये चीज बहुत कम लोगों को समझ आती है, बट इट्स बेटर कि आप बहुत देर के बाद पहले समझ लें और अपने बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करना शुरू करें ना। जिन लोगों को, जो लोग अब सीख रहे हैं, जो जेन जी अब सीख के निकल के खुद शादी करने लायक हो रहे हैं, उनके लिए जो मेरा मैसेज होगा वो ये होगा कि आपको सिर्फ ये बैलेंस करना है
कि आपकी जो फैमिली की एक्सपेक्टेशंस हैं उनका रूट क्या है, उनको आपकी कौन मतलब आपकी क्या ख्वाहिशात उनको फुलफिल करें, और कहाँ आपको लग रहा है कि वो प्रेशराइज कर रहे हैं। तो ये उनको बताना जरूरी है कि यू आर फीलिंग प्रेशर्ड, देयर शुड बी नो प्रेशर ऑन यू। शादी जिंदगी का अल्टीमेट गोल नहीं है, बट हाँ, लॉन्ग टर्म पार्टनर में आप क्या ढूंढना चाहते हैं, ताकि जो हमारी ट्रेडिशनल रिश्ता आंटी कल्चर है उसको भी थोड़ा सा हम क्वेश्चनेबल तरीके से देखें कि भाई उससे लोगों का फायदा नहीं हो रहा है। हाँ, आप रिश्ते करवा जरूर रहे हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस पैसे भी लेती हैं, बट क्या उससे कहीं बेहतर ये चीज नहीं है कि आप ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करें, वो पैसा ऐसी जगह इस्तेमाल करें जहां आप वो टूल किट सीखें, वो टूल किट एक्वायर कर लें, वो टेक्निक सीख लें जिससे आप एक बेहतर शादीशुदा जिंदगी गुजार सकें। सो a few final takeaways that I have for you is that expectation रियलिस्टिक होनी चाहिए, और आपको अंडरस्टैंड करनी है कि वो एक्सपेक्टेशन है क्या और क्यों आ रही है, क्या वो सिक्योरिटी बेस्ड है, क्या वो अफेक्शन बेस्ड है, उसका रूट कॉज क्या है, वो कहाँ से जन्म ले रही है, घर के बड़ों की जो फैमिली की जो एक्सपेक्टेशंस है। और उसके बाद आपको कम्युनिकेशन अपनी खोलनी है, पीपल प्लीजिंग बंद करके आपको बाउंड्री बना के ये बताना है कि जी आई अप्रिशिएट योर कंसर्न्स, मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ कि आप किस एंगल से ये बात कर रहे हैं, और उसी में गुंजाइश निकालें मेरे पर्सपेक्टिव की भी, जहां मुझे एक सर्टेन कंपैटिबिलिटी चाहिए। बातचीत सिर्फ फोन पे या टेक्स्ट पे नहीं होनी चाहिए। कम से कम भी अपने निकाह से पहले, कम से कम भी एक कॉन्ट्रैक्ट में बाउंड होने से पहले तीन 2 से 3 ऐसी मुलाकातें जरूर करें कि जिसमें आपको उस शख्स को परखने का मौका मिल जाए, चाहे आप लड़का है चाहे आप लड़की है। बट वो मैं ये नहीं कह रही कि आप छुप के डेट पे जाएं और 3-4 डेट्स ऐसे मार लें, मैं ये कह रही हूँ कि माइंडफुल होके 3 ऐसे इंटरेक्शंस कम से कम रखें जिसमें आप चंद वो सवालात कर सकें जिससे आपको दूसरे की वैल्यूज का भी अंदाजा हो जाए, इमोशनल कंपैटिबिलिटी का अंदाजा हो जाए, ये अंदाजा हो जाए कि जी हम डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस कर पाएंगे, आर वी ओपन, क्या अलाउड इंटरफेरेंस होगी फैमिली मेंबर्स की, इन लॉज की, और हम सिस्टम क्या फॉलो करेंगे। जॉइंट सिस्टम में रहने की एक सर्टन तमीज होती है और इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स का एक सर्टन तरीका होता है। सो इन तमाम चीज़ों को अगर आपको क्लैरिटी होगी तो आप अच्छे से नेविगेट कर सकते हैं। आई होप दैट this was good for you. I hope you were able to understand what I'm trying to teach you here. इससे रिलेटेड आपके कोई भी सवाल हो तो प्लीज मुझसे जरूर करें। I can see that people will be watching this as a replay. तो Facebook के comments में अगर आपके कोई questions हो प्री मैरिटल कोचिंग से रिलेटेड तो ज़रूर पूछें। मैंने इस वीक में 2 से 3 स्लॉट्स रखे हुए थे फ्री सेशन के, जो कि उनके थे प्री मैरिटल कोचिंग प्रोग्राम के। मैंने 4 स्लॉट्स खोले, तो उसके लिए अगर कोई फ्री सेशन लेना चाहे तो कॉल बुक कर सकते हैं। एंड यू कैन आस्क मी द प्रोसेस, यू कैन आस्क मी क्या पैकेज है उसका, बिकॉज अगर आप प्री मैरिटल कोचिंग प्रोग्राम में इन्वेस्ट करते हैं तो बेसिकली आप अपनी स्किल सेट को बढ़ा रहे हैं, आप अपने माइंडसेट पे काम कर रहे हैं, आप अपने इमोशंस पे काम कर रहे हैं, आप अपने बिलीफ सिस्टम पे काम कर रहे हैं, which will help you further in your marriage. If you find someone else, अब जैसे दिसंबर आ रहा है, people are getting married, if you think that somebody can benefit or should benefit from this program, please do let them know about this. My booking options are open. मैं यहाँ पर भी प्री मैरिटल कोचिंग प्रोग्राम का जो लिंक है वो दे देती हूँ। To book a free call for premarital coaching, please use this link. Okay, so I've given you the link directly. You can share it with others too. I would welcome all your questions. We just did a masterclass. It was supposed to be 2 hours long, but it
it went on to more than 4 hours long. I'm having a hard time trimming the video and sending it to the participants. So why I'm saying that is because um, अगर आप आज mindful होके अपना spouse choose कर सकते हैं, there is a less chance of conflicts. There is a less chance that you will have a difficult married life. बाज़ हमें नहीं पता होता दूसरा बंदा किस चीज़ से स्ट्रगल कर रहा है, बाज़ हमें नहीं पता होता कि उनके कोई चाइल्डहुड ट्रॉमास हैं जिनसे उनको डील करना होगा. अगर शादी के बाद हमें मालूम पड़ता है तो हम चूज कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं कि हमें उनको सपोर्ट करना है, इमोशनल सपोर्ट देना है, या हमको उनको छोड़ देना है ताकि वो जब बेहतर हो जाए तो मे बी वी कैन चूज टू कनेक्ट विद देम. द डिसीजन शुड बी विद यू, यू शुड नॉट बी फोर्स्ड इनटू इट. जब आप इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेते हैं और माइंडफुल होकर डिसीजंस लेते हैं तो आप रिग्रेट नहीं करते चीज़ें. आई होप जी कि आज की ट्रेनिंग आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी. थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन and I look forward to the feedback. I look forward to how you will use this information that I just shared with you. Thank you so much. I appreciate you. I appreciate everyone in the group. Please do join me live. कोशिश क्या करें कि हर वेंसडे को ज़रूर मुझे ज्वाइन करें. अब मैं एग्जैक्ट 6 बजे के बजाय मगरिब पढ़ के फिर जो है वो ट्रेनिंग स्टार्ट करती हूँ. इसमें कुछ इंसाइट्स होती हैं, कुछ चीज़ें जो आप दूसरों से भी शेयर कर सकते हैं. अगर आपको लगे कि कोई बहुत प्रोएक्टिव है और प्रोग्रेसिव है, उसको इनवाइट करें इस ग्रुप में. इस ग्रुप में लड़के कम हैं, लड़कियां ज़्यादा हैं. हालांकि मैं बिल्कुल भी जेंडर बायस नहीं हूँ, बट ऐसा है क्योंकि with my experience I can see that a lot of women are investing in themselves. It's a good thing. At the same time, please understand that when you take a certain training, the responsibility increases on you to be more empathic, to be more kind and more responsible. Okay? The responsibility increases and you're held accountable. So whatever you are doing, wherever you are, just be more self-aware. I hope you will use this. Take care. Allah Hafiz.